with the topic MySQL. Okay, so basically, if you will talk about MySQL or SQL or any of the database, before that we have to start. Before that we have to count database management system. What is database management system? First of all, we'll discuss about this. So here, if we talk about that, in this topic we'll study about introduction of database. Okay, advantage of database system, relational data model क्या होते हैं, what is relational data model, and commonly used terminology in related relational data model, RDM and keys. ठीक है. So in this we will study about these four topics, the basic of DBMS. Okay, so remaining, let's see introduction about database. Are you able to see my screen? Okay. So introduction means, if we talk about the database management system, then database means what is data. If I will talk about data, a simple word, that is data, that means it is raw figure and facts, you can say figure and facts, that should be in numbers, strings, or you can say sentences. Okay, characters, कुछ भी हो सकता है, anything is called data. Okay, the collective information, the mixture of information is called a data. Database is the collection of related information. Okay, that is organized in such a way that supports for easy access, modify and maintain data. हम डेटा को modify कर सकते हैं, we can maintain the particular data. The content of a database are obtained by combining data from all the different sources in an organization. Suppose that you are studying in a school, there are a few sections that you will go with. That one is like one is your academic section. Academic section. Okay, one is like your fee section, third is like your transport section, fourth is like your marking section. Okay, your examination and all. So there are four sections, but there is a one thing is common, that is student. Okay, so student is a common, his enrollment is common, his SR number is common. So that when we will search from filter this data from any one place, though then it will code information when you will get in the meaning as a meaningful result. Like suppose that if you want to find the marks of Aditi, 5 subject marks of class 10, then it will get like English, Hindi, Math, Science, SST. So it will count like same as if I will find the what is the fee remaining dues or dues, whatever the dues you are paying, that is different thing. Okay, so when the system will give you that this much amount is not clear or this much amount is clear, so in that case that is called also information when you will get up as a meaningful result. Okay, here this is called a database. A figure is showing over here. Is tables, queries, views, reports, these are come from database. ठीक है, tables निकलती हैं, queries निकलती करते हैं हम लोग, views, what views are there. Okay, and reports. A database management system means DBMS or database system in short, you can say. Okay, so software that can be used to create, manage data. Okay,
अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि व्हाट एग्जाम्पल्स आर ऑफ डेटाबेस, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट विल यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक MS एक्सेल हम लोग आप यूज कर चुके हो क्लास 10. ओके, MySQL यू आर गोइंग टू यूज, पोस्टेज SQL, SQLite, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल, SAP. Oracle और MySQL now merge, both are merged now. ओके, SAP, DBase, Foxco बहुत पहले यूज होता था, ठीक है, अब ये डिमोलिश हो गया है लगभग. अब बहुत पुरानी कंपनीज में यूज होता है जहाँ पे आज भी वो लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली कमांड बेस्ड ऑल्सो, ठीक है. तो एटसेट्रा इस तरीके से जो हम लोगों को डेटाबेसेस कुछ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, MySQL सन का है, ओरेकल और MySQL मर्ज हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है. तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम? तो यहाँ पे कहते हैं रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, मतलब डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करता है. व्हाट डज इट मीन रिडंडेंसी? मतलब डेटा, सपोज दैट आपने कहा कि हमने, अब ये डुप्लीकेशन कहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इफ एवरीवेयर कैन पॉसिबल डुप्लीकेशन, बट द थिंग इज सपोज दैट हमने आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए आपको कि 10 पीपल्स आई वांट रजिस्टर्ड इन माय कंपनी. ओके, so in that case suppose that one is G and second one is also G. Okay, in that case what you will do? The duplication is possible. Yes, it is possible, but the thing is that कि आप उनका जो enrollment होगा, एम्प्लॉय enrollment number कह सकते हो, स्टूडेंट enrollment कह सकते हो. आपके जैसे क्लास में दो नेम्स डिफरेंट नेम्स होते हैं, लाइक हर्षवर्धन सिंह, तो उसमें कंफ्यूजन होता है व्हाट हु इज फर्स्ट, हु इज सेकेंड, तो कौन है. तो यहाँ पे इन दैट केस आप क्या करते हो, उनका एनरोलमेंट नंबर चेक करते हो कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, उनके फादर का नाम क्या है, दैट यू विल चेक, और डेट ऑफ बर्थ चेक. तो आप वहां से जस्टिफाई करते हो कि हु इज वन, किसके बारे में हम वी आर गोइंग टू टॉक, ठीक है. तो हम लोग जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं वहां पे हमें उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो या तो उसके एनरोलमेंट नंबर से, उसकी DOB से कहीं ना कहीं उसको डिफर करती है. दैट इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट, इट विल रिड्यूस द डुप्लीकेसी, ठीक है. अगर आपका एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट है तो डेफिनेटली वो आज दोनों पर्सन भी डिफरेंट ही होंगे. इट रिमूव्स डुप्लीकेशन डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस, ठीक है, एंड ऑल एप्लीकेशंस रिफर्स टू द सेंट्रली मेंशन्ड डेटाबेस, ठीक है. कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑफ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है. डेटा इनकंसिस्टेंसी को बहुत इंक्रीज कर देता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत डेटा हैजर्ड सा हो जाता है. इन दैट केस अगर आप क्वेरी इजिली करते हो, डेटा प्रॉपर मैनेज करते हो, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसी कि सपोज दैट आपका आपने नेम इनपुट किया, नेम की जगह एड्रेस आ गया, एड्रेस की जगह नेम पहुंच गया. तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं. वैसे तो इफ यू विल टॉक अबाउट, यू कैन मैनेज विद द एक्सेल ऑल्सो, ठीक है, एक्सेल से भी डेटा मैनेज हो सकता है. बट फॉर अब आपको अगर बात की जाए कि आपको 65,05,556 तक का, तो ठीक है, ठीक है, इस अमाउंट तक लगभग ठीक है, क्योंकि उतने लगभग कॉलम होते हैं आपके एक्सेल में, ठीक है. लेकिन इफ वील इंक्रीज दिस, अगर हम रोज इंक्रीज करें, डेटा इंक्रीज करें, तो यू कांट क्वेरी ऑन दिस एक्सेल, ठीक है. एक्सेल इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, बट फिर भी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम होती है, इसको हम सिंक नहीं कर सकते दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, वहाँ पे भी आपको डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है. सेम एज एक्सेल इज आल्सो अ गुड सॉफ्टवेयर, बट you can segregated in a table format, you can do a query, but यहाँ पे भी हम लोग इसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ यूज नहीं कर सकते. इनकी फाइल्स पे यूज कर सकते हैं और विद सिंकिंग ऑफ एनी अदर सॉफ्टवेयर, बट नॉट डायरेक्टली. दैट्स व्हाई वी विल यूज any software like MySQL, SQL Server. This is we will use databases as a backend. Okay. Now डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. अब सपोज दैट आपका पहले क्या होता था कि समवन इज मेकिंग अ रजिस्टर
and then it will going to other office, he will copy in different register, then go to the third office, then it will copy to the fourth register. तो यहाँ पे क्या होता था, it is very difficult to sharing how to manage all the things. तो अब क्या होता है कि सिंपल एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, everyone is doing on the work, ठीक है, on particular area, okay, and the data will syncing with everyone. किसी को भी जैसे SBI का बैंक का डेटा ले लो, anywhere in world you can go and access your account, okay. तो ये क्या है, it is a data syncing, sharing ही एक तरीके के. So anyone can share, anyone can access, anyone can not anyone is secured according to whom the password and ID having, not anyone, but बहुत easily access कर सकता है if he is having ID and password, if he is everything aware about the things, okay. Enforce standard, ठीक है, बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को, जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है उन आइडियाज़ को और उनके फंक्शंस को, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग, अभी इनके कुछ और बात करते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स की. तो अगर हम बात करें कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि इफ इट इज सिक्योर्ड, अगर एक जगह डेटा रहता है, जैसे आधार कार्ड का डेटा है, इट इज सिक्योर्ड, इतनी है ना, इंक्रिप्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे आप कोई भी किसी का डेटा या किसी का आधार कार्ड नहीं निकाल. पहले से स्टार्टिंग में हुआ था कि आपके पास बस नंबर डालिए, किसी का भी आधार कार्ड निकालिए, बट नाउ द OTP एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर दैट यू कैन एक्सेस, ठीक है. DBMS serves as an interface between the database and users और application programs, ठीक है. DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. अब ये तो DBMS की बात हो गई कि डेटाबेस मैनेज होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट RDBMS, ठीक है, RDBMS, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे R मीन्स रिलेशनल एंड दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द सेम. रिलेशनल RDM क्या होता है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है, ठीक है. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डेटा मॉडल इज रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है. अब डिफरेंट टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं जो हम लोग एक्सेस करते हैं और फाइंड करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं. इन रिलेशनल डेटा मॉडल डेटाबेस रिप्रेजेंट इन कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, ठीक है. टेबल्स को रिलेट करके हम लोग बनाते हैं. जैसे हमारा एक्सेस इज द रिलेशनल डेटा मॉडल, यू कैन से, ठीक है. ईच टेबल इज टर्म्ड एज रिलेशनल, हैज इट्स यूनिक नेम इन द रिलेशनल डेटा मॉडल. हर टेबल का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है. हर एक रिलेशन का एक यूनिक, वो किससे रिलेट करते हैं, एक यूनिक नेम से. जैसे एक कॉलम है, ठीक है, एक टेबल में एक कॉलम है ENR नंबर, मतलब एनरोलमेंट नंबर. हर टेबल में एक कॉलम होगा, तो वी कैन कोरिलेट द डेटा फंक्शंस. टेबल्स आर फाउंड बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम, से तो पता ही है आपको, ठीक है. अ रो हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ टपल और रिकॉर्ड, ठीक है. एक रो में, ठीक है, एक टेबल में जो टॉप रो छोड़कर, ठीक है, टॉप रो छोड़कर ये हमारे क्या कहलाते हैं, टपल और रिकॉर्ड, ठीक है. जो रोज होती हैं दैट इज कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड. जो टॉप रो होती है दैट इज कॉल्ड अ फील्ड रो, ठीक है. हमारी इसे हम कहते हैं फील्ड रो, फील्ड, या फिर आप कह सकते हो एट्रीब्यूट कह सकते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कॉलम नेम कह सकते हो, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको हम लोग इस तरीके से इनकी डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग टेबल्स आर फॉर्म्ड इन द रोज, तो मैंने बता दिया. अ रो हॉरिजॉन्टल सबसेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट अ टपल और रिकॉर्ड दैट आई हैव टोल्ड, व्हाइल कॉलम वर्टिकल सबसेट ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, ठीक है. जो वर्टिकल सबसेट्स हैं उनको एट्रीब्यूट या कॉलम या फील्ड भी कह सकते हो उनको, ठीक है. दीज आर द एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, क्लास, सेक्शन, एवरेज, दीज आर द एट्रीब्यूट और यू कैन से या द कॉलम, ठीक है. इनको हम हेडिंग भी बोलते हैं, हर कॉलम के हेडिंग, ठीक है. अब इस रिलेशनल वेरिएबल मतलब एक टेबल का नाम है जिससे हम टेबल हमेशा कोई भी चीज कॉल करेंगे तो बाय द नेम ऑफ अ टेबल, सो दैट इज अ रिलेशनल वेरिएबल. दीज ऑल आर टपल्स, ठीक है. ये क्या कहलाते हैं, टपल्स कहलाते हैं.
और यू कैन से रोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेटाबेस। से बात करते हैं हम लोग रिलेशनल। रिलेशन क्या? रिलेशन में बी थॉट ऑफ एज सेट ऑफ रोज, सेवरल कॉलम्स, और कुछ कॉलम्स होते हैं। टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन, टेबल भी एक तरीके की रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रो इज अ रियल वर्ड एंटिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम किसी रिलेशन की बात करें तो रो जो है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इन विच वी फिल द डेटा। रो इज अ रियल वर्ड एंटिटी और रियल रिलेशनशिप। ठीक है, ऑल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर कॉलम आर सेम काइंड। जैसे हमने कहा कि एक कॉलम है हमारा, ठीक है, ये कॉलम है हमारे, सपोज इसमें ये हमारा सीरियल नंबर है। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 इनमें जितनी भी वैल्यूज होंगी ऑल द वैल्यूज आर इंटीजर। ठीक है, सेम एज हमने कहा नेम, तो नेम में हमारा जो भी इसमें नेम्स होंगे, जितने भी नेम्स होंगे दैट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस कॉलम का जो भी नाम होगा, सॉरी इस कॉलम का भी जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल टाइप होगा और यू कैन से डेटा टाइप होगा, दैट शुड बी सेम। लाइक स्ट्रिंग होगा तो ऑल द फॉर्म ऑफ all the form of data will be string type। ठीक है, सेम एज अगर हमने कहा न्यूमेरिक है तो इट विल बी इंटीजर, सभी न्यूमेरिक होंगे। ठीक है, ईच रो इज डिस्टिंक्ट, हर रो डिफरेंट होगी अपनी अपनी। ऑर्डर ऑफ रो इज इमैटेरियल। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि हमारा पास ऑर्डर ऑफ द रो क्या है, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप यू कैन चेंज, you can manage, you can arrange, you can sort, it depends upon you। For each row, each column must have atomic value, individual value होती है। ठीक है, हर एक कॉलम की एक एटॉमिक वैल्यू, मतलब एक डेटा टाइप यू कैन से डिफरेंट होता है, सेम भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, फॉर अ रो कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, एक रो के हिसाब से अगर हम रो की बात करें तो एक कॉलम में इसको हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, दैट मीन्स अ सेल। ठीक है, एक सेल में यू कैन से एक सेल में हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, एक वैल्यू इन द सेंस इन वन गो यू कैन एंटर वन वैल्यू। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट चेंज करोगे, अपडेट करोगे, इट विल चेंज विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट इन गिवन कॉलम इज टेकन। ठीक है, अब अगर हम डोमेन की बात करें तो जो भी वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जो भी वहां पे प्रेजेंट होगी इन अ कॉलम। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन, जो भी डोमेन होता है मतलब एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो प्रेजेंट होगी एक कॉलम के अकॉर्डिंग। टपल और रोज, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, जो रो का एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। ठीक है, वन रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिलेशन का द रोज ऑफ अ रिलेशन आर ऑल्सो कॉल्ड टपल्स। अब जो रिलेशन का रोज जो होती है रिलेशन में, ये रोज इनको हम क्या कहेंगे, टपल्स भी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एट्रीब्यूट या कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फील्ड भी बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिया गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, द कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, टेबल्स जो होती हैं, कॉलम के टेबल में जो कॉलम होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूट। द कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, वर्टिकल पार्ट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो किसी भी कॉलम को हम एट्रीब्यूट या कॉलम बोल सकते हैं। नाउ डिग्री, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, द डिग्री ऑफ अ टेबल इज number of column, how many number of columns are there, that depends upon the number of, sorry, what is the degree of the column, it depends upon the number of the column। suppose that I have if I will make like that this, तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए, so that is called a degree of a table is 3। okay, तो डिग्री इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। सेकेंड वन इज कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज। ठीक है,
नंबर ऑफ रोज मतलब हमने यहाँ पे अगर एक रो इनपुट करी, ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पे क्या है कि ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये फोन नंबर है, सपोज दैट. ओके, नाउ दिस टेबल हैव 3 डिग्री. अगर इसके इफ आई विल टॉक अबाउट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री कितनी होगी 3, द डिग्री इज 3 एंड कार्डिनलिटी इज 3, ठीक है, सॉरी 2, cardinality is 2. Reason behind 1 and 2 rows are there, and here 1, 2, 3 columns are there. So degree and cardinality is not different thing, is completely different thing actually. Column is a degree and number of rows are the cardinality. ठीक है, it is the number of rows or tuples in a table, so that cardinality of a table is above table which we have discussed above. Okay, that here I have shown you the example, and the degree is 1, 2, 3 columns are there, that's why degree is 3, and cardinality 2 rows are there, that's why 2 is a cardinality. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ कीज की, जो हमारी यूनिक कीज होती हैं, जो हमारे स्पेशल फंक्शंस को डिफाइन करती हैं, बताती हैं. That I am going to do. Keys are an important part of a relational database. देखो, जब भी हम डेटाबेस को रिलेशन करेंगे, 20 मिनट, ठीक है, तो हम लोग अगर कार्डिनलिटी की बात करेंगे, कीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस एंड द विटल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. ठीक है, तो हम बात करें कि दो तीन टेबल्स में अगर हम कोई चीज रिलेशन करते हैं, कोरिलेट करते हैं, देन इट इज रिक्वायर्ड कीज ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, की किसी भी की को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कॉलम को हम की, और यू कैन से यूनिक आइडेंटिफाइड. ठीक है, कॉलम में हैविंग अ की. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीज के टाइप की. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की. ठीक है, इट्स अ इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट की एक्चुअली. A primary key is an attribute or a group of attribute that can be uniquely identified tuple with the relation. ठीक है, अगर हम बात करें कि एक टेबल में एक यूनिक की है, ठीक है, तो की क्या होगा कि अब अभी हमने बात की थी रिडंडेंसी की, मतलब डुप्लीकेशन की. अब डुप्लीकेशन रोकेंगे कैसे, रिक्वायर्ड कैसे होगा? अगर हम सिंपल डेटा फीड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, देन इन दैट केस ऑल डेटा यू कैन फीड डुप्लीकेट. तो डुप्लीकेट ना हो और रिलेशन मेंटेन है. इफ यू रिक्वायर्ड टू मेक अ रिलेशन, इन बोथ द केसेस अ कीज आर रिक्वायर्ड, ऐसे समझो. ठीक है, अगर हमें रिडंडेंसी को इंक्रीज नहीं होने देना है, ठीक है, रिडंडेंसी मेंटेन रखनी है, देन वी हैव टू इंसर्ट वन at least one primary key, any of one key in a table. ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है कि इट मेंटेन द रिडंडेंसी फर्स्ट, इट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल. ठीक है, एक कॉलम जो हमारा है उसमें उसको हम यूनिक बनाते हैं. सपोज दैट यहाँ हमने इनरोलमेंट बना दिया, तो अब इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से अगर हम जितनी बार डेटा फीड करेंगे, वो ये कॉलम आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बाकी सारे कॉलम डुप्लीकेट हो सकते हैं. नाउ कैंडिडेट की. A candidate key is one that is capable of becoming the primary key. ऐसी की जो प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखती हो. ठीक है, हमने कैंडिडेट की इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की. जैसे हमने कहा इनरोलमेंट नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन किया, अब दूसरा प्राइमरी की बन सकती है. अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक प्राइमरी की, सपोज दैट हमने एक टेबल दी है. ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आता है, वन ऑफ अ टेबल आई हैव ऑलरेडी गिवन एंड आई हैव डिफाइंड दैट एनरोलमेंट इज अ प्राइमरी की. ओके, एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू इफ यू वांट टू मेक अ वन मोर प्राइमरी की एंड व्हाट इज दैट. ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं. तो इन दैट केस आपका जैसे फोन नंबर हो सकता है, आपका प्राइमरी की हो सकता है, डीओबी हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है. ठीक है, ऐसे आपको वहां पे अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि आपका कहाँ पे क्या है, मतलब आपको ढूंढना होगा उसमें कि किस तरीके से हमारी कौन सी वैल्यू, कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम हमारा
परफेक्ट है फॉर अ सेकेंडरी प्राइमरी की। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्राइमरी की होगी वो हमारी कैंडिडेट की कहलाएगी, प्राइमरी की सिंगल ही होगी एक टेबल में। ठीक है, तो सेकेंड की अगर हम किसी को प्राइमरी की बनाते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप, देन दैट केस दैट इज अ कैंडिडेट की। ऑल्टरनेट की, अब अगर हम कैंडिडेट की इज नॉट द प्राइमरी की, इज कॉल्ड अल्टरनेट की। अब अगर कोई भी कैंडिडेट की ऐसी की जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं है, वो ऑल्टरनेट की होती है। मतलब प्राइमरी और कैंडिडेट की अगर दोनों नहीं है तो आप उसको एक को ऑल्टरनेट की बना सकते हो। ठीक, थर्ड फोर्थ, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की। सपोज दैट अब यहाँ पे हमारी एक टेबल है ये और एक टेबल है ये। ठीक है, in this table I have given serial number is a primary key। ठीक है, serial number is a primary key। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी की नहीं देते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं, ठीक है, तो हम इस सीरियल नंबर को फॉरेन की बना सकते हैं। इट इज यूज टू लिंक अप टू टेबल्स। ठीक है, अगर आपको रिलेशन बनाना है टू टेबल्स में, देन यू विल यूज फॉरेन की फॉर अ सेकेंडरी टेबल। मतलब आपकी जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की होगी, दैट शुड बी अ सेकेंड, दैट शुड बी अ if you are creating a second table and same column will be a foreign key of that table। ठीक है, जो एक टेबल की प्राइमरी की होगी वो सेकेंड टेबल की फॉरेन की होगी। ठीक है, ठीक है, समझे? नाउ अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो इस एग्जांपल में लेट अस नो अंडरस्टैंड द कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी इन रिलेशनल डेटा मॉडल यूजिंग बिलो गिवन टेबल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, स्कूल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, सेक्शन, एवरेज। तो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बनाएंगे तो एडमिशन नंबर को बनाएंगे। ठीक है, एडमिशन नंबर को बनाएंगे, समझा? सो नाउ अब बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे ये एक कॉलम बना हुआ है। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी की। नाउ फील्ड्स है, यहाँ पे क्या है? फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स अभी मैम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे इसमें क्या है? एडीएम नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, सेक्शन, एवरेज, दीज आर द फील्ड। अब रोज क्या है? रोड्स, रिकॉर्ड्स, टपल्स, एक ही चीज है, तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स। तो यहाँ पे ये रोज, रिकॉर्ड्स, टपल्स है। अब डोमेन यहाँ पे क्या बात हो रही है? जैसे यहाँ पे जो चीज कॉमन होती है, जैसे यहाँ पे सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन आर द डोमेन, ए बी सी डी। ठीक है, सेक्शन ऐसे डोमेन जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे हमने कहा ट्रू फॉल्स। ठीक है, मेल फीमेल, है ना, ऐसे डोमेन होते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को हम डोमेन बोलते हैं जो सब में किसी ना किसी में बेसिस पे कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो जेंडर्स लिखते हैं। ठीक है, फॉल्स ट्रू। ठीक है, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, ऐसे करके डोमेन होते हैं। डिग्री, डिग्री यहाँ पे कितनी है? 5। ठीक है, डिग्री कितनी? 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर देयर। कार्डिनलिटी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर कैंडिडेट की एडमिशन नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एज यूनिक वैल्यूज, देयरफॉर एडमिशन नंबर एंड स्टूडेंट नेम कैन बी ए कैंडिडेट की। आउट ऑफ द एडमिशन नंबर एंड सीरियल स्टूडेंट नेम, तो हम कहेंगे एडमिशन नंबर इज द प्राइमरी की। ठीक है, अगर हम एडमिशन इसमें एडमिशन नंबर और स्टूडेंट नेम की बात करें, देन एडमिशन नंबर इज द प्राइमरी की। कोई और इन दो कॉलम्स के अलावा कोई अदर कॉलम्स आपके नहीं हो सकते प्राइमरी की। ठीक है, alternate key in the candidate key, admission number is the primary key and the student name is the alternate key। ठीक है, अब अगर सेकंड टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या होगा? एडमिशन नंबर आपकी प्राइमरी की बना सकते हो और स्टूडेंट नेम इज अ अल्टरनेट की। समझे यहाँ तक? कोई डाउट? ओके, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में क्या व्हाट विल डिस्कस इन द प्रेजेंटेशन। यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ MySQL, MySQL and SQL,
types of SQL commands, data types in MySQL, creating database and tables, inserting, deleting and modifying records, making simple queries और altering table. ठीक है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम लोग now we're going to study about MySQL. ठीक है, MySQL क्या है कि it is a open source. ठीक है, it is an open source. ठीक है, it is an open source software. It is an open source. It is an open source software. ठीक है, so if we'll talk about open source, then it is, what is open source? Can anyone tell? Open source, which you will get free of cost. Yes, it is maintained by community, and one thing, open source, that is not mandatory you will get a free of cost. Okay, but you can get by free license you can get. Okay, and open source में अगर हम दो कैटेगरी की बात करें, एक फ्रीवेयर और एक शेयरवेयर. ओके, फ्रीवेयर मीन्स दो सॉफ्टवेयर. फ्रीवेयर मीन्स वी विल गेट अ फ्रीवेयर, दैट मीन्स फ्रीवेयर मीन्स दैट इज, सब बंद हो जाएगा हमारा. 2 मिनट रुक जाओ, एक और रखा है वहाँ रेड वाला. सो हियर यू विल ओपन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर. फ्रीवेयर मतलब कि दैट सॉफ्टवेयर विच यू विल गेट फ्री. ओके, and shareware, that software which the software which will, in which you can make a change and then you can share with anyone also. मीन्स आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें शेयरवेयर और फ्रीवेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो शेयरवेयर आपका जैसे एंड्रॉयड, ठीक है, इज एन शेयरवेयर. ठीक है, और फ्रीवेयर क्या हो जाएगा आपका, जैसे VLC मीडिया प्लेयर आप यूज करते हो. ठीक है, वो एक और यूज करते हो आप लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे ये ब्राउजर्स हो गए, दीज आर द फ्रीवेयर. ओके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे फ्रीवेयर होते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओपन. तो सबसे पहले बात करें कि MySQL जो हमने बनाया था सर्वर एक्सेट्रा, इज डेवलप्ड बाय मिखेल वेडिनिस एंड एका मॉन्टी, एंड इट इज ऑल्टरनेटिव टू मेनी ऑफ द कॉमर्शियल. क्या करना है ना यहाँ, क्या करना है, ये चाहिए ले जाओ. So here it is open source, free of cost, portability, security, connectivity and query language. ठीक है, तो ये एक open source है. It can be installed and run on any types of hardware like OS, like Linux, Windows, Mac, etc. ठीक है, it creates secure database protected password. It may connect various type of network client, ठीक है, using different protocol. SQL means structured query language, or you can say sequential query language. Both are same. ठीक है, to handle a database. ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं. MySQL की बात करें तो इफ MySQL एंड SQL में डिफरेंस समझें, तो बेसिकली इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा ऑफ फ्रॉम MySQL database, all programs and users must be SQL structured query language. सभी लगभग चीजें अगर हम बात करें SQL और MySQL की, तो लगभग चीजें सेम होती हैं. SQL is a set of commands that recognized by RDBMS, means Relational Database Management System, and become a standard language. SQL is a language that enables you create to manage relational database in which all information are kept in tables. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन टेबल. देयर आर न्यूमरस वर्जन्स ऑफ SQL. द ओरिजिनल वर्जन वाज डेवलप्ड बाय IBM. ठीक है, सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी में विद द नेम ऑफ सिक्वेल. ठीक है, इसलिए हम इसको सिक्वेल भी बोलते हैं. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम आर प्रोजेक्ट इन 1970. ठीक है, इट वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI
in 1986 by the name of SQL. SQL is a standard query language whereas MySQL is a DBMS software based on SQL. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि SQL और MySQL में डिफरेंस, तो एक लाइन में आप डिफरेंस कह सकते हो कि SQL is a standard query language whereas MySQL is a DBMS software based on SQL. SQL पे बेस्ड एक DBMS डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं. क्लियर? इन शॉर्ट. नाउ अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे से. ठीक है, अभी तक का तो रट सकते थे, यहाँ से रट नहीं सकते. ठीक है. नाउ अब देखो, MySQL follows specification of for its commands. These SQL commands can be categorized as data definition language means DDL. ठीक है, DDL कमांड जो हमारी कमांड्स एक डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, when you will start to create, when you will start database to create a database, you will use database information. DDL कमांड वो कमांड जो हम डेटा को क्रिएट करने के लिए या टेबल्स को क्रिएट करने के लिए या ऑल्टर करने के लिए या एनी ऑफ अ फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो. इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और डेटाबेस. ठीक है, अगर हम किसी टेबल के स्ट्रक्चर में या डेटाबेस में कोई चेंज करते हैं, इन दैट केस दोज कमांड्स आर कॉल्ड अ DDL कमांड. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं DML कमांड की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मतलब इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन डेटा मींस रिकॉर्ड्स. अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने हैं जो हमारा स्टोर है, ठीक है, सपोज दैट राधे की जगह श्याम करना है, श्याम की जगह राधे करना है, DOB में चेंज करना है. ठीक है, तो इन दैट केस द कमांड्स व्हिच विल यूज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में DML. DML में बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना. DDL कमांड आप फिर से एक बार समझ लो. DDL कमांड्स क्या होती हैं? अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है, कॉलम के नेम को चेंज करना है, यानी कि एट्रीब्यूट या फील्ड नेम को फील्ड्स को चेंज करना है, कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है, देन यू विल यूज DDL कमांड. इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन अ नेम ऑफ अ कॉलम, नेम ऑफ in a record, change in a record, like change you want to change the name, you want to change the DOB, then that is this changes called comes with DML command. ठीक है, ये हम DML कमांड के थ्रू चेंज करेंगे. इसके बाद करते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल TCL कमांड. मतलब अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है, जैसे बोलते हमें करना है कि आपका डेटा आपने फीड किया, इट विल नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, तो देन इन दैट केस यू विल कैन रोल बैक लाइक कंट्रोल Z. ठीक है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, दीज आर द कमांड. सेव पॉइंट मतलब आप सेव करते हो, रोल बैक मतलब आप स्टेप बैक जाते हो. ठीक है, स्टेप बैक जाते हो. और कमिट मतलब आप एक फिक्स कर देते हो कि हाँ यहाँ से के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है, तो जैसे DML कमांड सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. ठीक है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, तो इस तरीके की कमांड्स हैं. इसके बाद TCL कमांड. ठीक है, ये एक्सेस ग्रांट करने के लिए होते हैं, मैनिपुलेशन परमिशंस को एक्सेस करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो दीज कमांड्स विल यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस विच विल वी यूज. ठीक है, तो किस तरीके से क्या करते हैं फंक्शंस हम लोग, इनके जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, वो हम लोग इसके पढ़ेंगे. ठीक है, डेटा टाइप भी, बहुत सारे डेटा टाइप्स भी हैं. ठीक है, डेटा टाइप समझते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं. जैसे हम लोगों ने बात करी न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक टाइप, तो इंटीजर के लिए हम लोग इंट यूज कर सकते हैं या इंटीजर यूज कर सकते हैं. स्मॉल इंट, ठीक है, स्मॉल इंट अप टू 5 डिजिट तक का नंबर, और इंटीजर मतलब 11 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल. ठीक है, विदाउट डेसिमल. फ्लोट और MD मतलब M और D, मतलब जो हमारा M और D का मतलब है M इज अ डिजिट लेंथ और D इज अ डेसिमल प्लेस. मतलब हमने कहा, जैसे हमने लिखा फ्लोट और फिर लिखा 100 और 4, यानी कि 100 डिजिट तक की. मतलब ये एग्जाम्पल, जैसे इट इज जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, हमने लिखा फ्लोट 10 और 2, यानी कि डेसिमल प्लेस जो है, डेसिमल प्लेस से पहले का नंबर, होल नंबर जो है हमारा, वो हमारा 10 डिजिट तक का हो सकता है, और डेसिमल प्लेस की बाद की वैल्यू 2 डिजिट की हो सकती है.
ठीक है। तो फ्लोट, स्मॉल, इंटीजर, ये हमारे एसक्यूएल में यूज होते हैं। फिर डेट एंड टाइम, डेट टाइप्स, डेट एंड टाइम डेटा टाइप होते हैं। डेट एंड टाइम मतलब, डेट एंड टाइम मतलब फॉर्मेट, जो हमारा डेट इंटर करने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है, फिक्स फॉर्मेट होता है, ईयर ईयर ईयर, मंथ और डे, ठीक है। ये उल्टा होता है, ठीक है, ईयर पहले होगा, फिर मंथ पहले होगा और डी और डैश लगेगा, तब आप इंसर्ट कर पाओगे। एंड ऑल शुड बी इन सिंगल कॉलम, सिंगल कोट। टाइम स्टोर एच आर मिनट सेकेंड, ये ऐसे ही होता है जैसा लिखते हैं आप लोग। स्ट्रिंग और टेक्स्ट डेटा टाइप, कैरेक्टर, वैरचर। अब यहाँ पे ये समझो, कैर और वैरचर में फर्क क्या होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी आते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ऑफ अ 25 कैरेक्टर, यहाँ भी वही है। अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 25 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क ये है, यहाँ पे लेंथ फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ जो है 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। डिफॉल्ट इसकी 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर। मतलब अगर आप कोई भी लेंथ साइज इसका डिफाइन नहीं करोगे, देन इन दैट केस आपको क्या होगा, आपका क्या होगा, ये टेबल जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1 लेगी मतलब 1 कैरेक्टर ही इंसर्ट कराएगी, ठीक है। जैसे हमने कोई भी @ हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी कैरेक्टर ए बी सी, न्यूमेरिक भी कैरेक्टर में ले सकते हो। और अगर वेरिएबल अब साइज दे देते हैं तो 255 कैरेक्टर तक जाता है। अब इसका वेरिएबल का साइज, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू 255। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही 255 है, मतलब आप इसमें एक साथ इन वन गो यू कैन एंटर 255 कैरेक्टर। अगर आप साइज इंक्रीज करते हो तो आपका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरेक्टर, 1 वेरिएबल इज इक्वल टू 255 कैरेक्टर। अब कैर कुछ देखो, अब एक चीज समझ लो, इंटीजर को छोड़कर एंड ओनली इंटीजर वेरिएबल को छोड़कर all the variables, all the data values should be in single quote, ठीक है। केवल वेरिएबल को, कैर, वैरचर, डेट, टाइम, वैल्यू शुड बी इनक्लोज विद सिंगल और डबल कोट, ठीक है। आप डबल कोट में भी रख सकते हो और सिंगल कोट में भी रख सकते हो, ठीक है, समझना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ई डेटा टाइप्स हो गए। So from tomorrow we will start with creating database and tables, ठीक है, and do practicals as with parallel, okay. So you have to prepare, study these things properly, ठीक है। तो आप लोग इजीली ये काम कर लोगे, ठीक है। बहुत इजी होती है एसक्यूएल, थोड़ा सा मेहनत से पढ़ोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो यहाँ ये मैं शेयर कर दूंगा, पूरे नोट सभी के शेयर कर दूंगा, तो आप इसको